दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स में चैप्टर 10 सर्कल्स के एक्सरसाइज 10.4 पर चर्चा करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हीं क्वेश्चंस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10.4 का क्वेश्चन 5 है। थ्री गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Salma throw a ball to Here is the question of the chapter circle of class 9th mathematics. That is exercise, it is 10.5. So there is a question just like that. You can see that this is question of the chapter 10 circles, and this is the fifth question of exercise 10.4. So dear, the statement of the question is three girls Reshma, Salma and Mandeep are playing in a game by standing on the circle of radius 5 meter drawn in a park. Reshma throw a ball to Salma. Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बताना है कि यहाँ पे थ्री फ्रेंड्स हैं और ये पार्क में एक सर्कुलर पार्क है, उसमें खड़े हुए हैं और बॉल थ्रोइंग का गेम खेल रहे हैं. सो लेट अस indicate this situation on the circle. So you can see here just like that. This is the question. So dear, let us start. This is the position. Okay dear. And in this circular park, three girls are sitting just like that. You can see that this is a three friends, that is friends are named of the friends are Salma, Reshma and Mandeep. So let us, Reshma is sitting here, standing here. This is Reshma and this is Salma, and after that here is the Mandeep. Okay, these three friends are standing on a circular park. Let us start the game. Reshma throw the ball to Salma. यहाँ से बॉल सलमा के पास आ रही है और सलमा ने बॉल थ्रो की तो ये मनदीप के पास पहुंच गई और मनदीप से रेशमा के पास बॉल आ गई. तो आपको ये बताना है ये RM जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट अस द सेंटर ऑफ द सर्कल इज O. यहाँ पे हमने इसका सेंटर O ले लिया और सेंटर O से M को ज्वाइन कर लिया और इसी तरह से सेंटर O को R से भी ज्वाइन कर दिया. ठीक है, और सेंटर O को हमने S से भी ज्वाइन कर लिया. सो दिस इज द पोजीशन. आफ्टर दैट वी हैव ए ड्रॉ ए परपेंडिकुलर just like that. You can see on this
डिस्टेंस एस एम पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो आप देखिएगा यहाँ पे गिवन जो थिंग्स है दैट इज गिवन हेयर, दिस रेडियस इज 5 मीटर, this is also 5 meter, and this radius is again 5 meter. Okay, and the distance between Salma to Reshma is 6 meter, this is 6 meter, this is also 6 meter. Okay, now if perpendicular draw from the center bisect the chord, you know very well, जो हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो किसी भी कॉर्ड पे ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होती है, साथ में वो कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करती है। सो लेट अस स्टार्ट, दिस इज 3 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 3 मीटर। वाई? बिकॉज दिस कॉर्ड इज बाइसेक्टेड in two parts, and let us the point is m पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, हियर इज गिवन थिंग्स दैट लेट द पोजीशन of Reshma Salma and Mandeep as R, S and M. Okay, and here is given that OR equal to OS equal to OM, this is 5 meter, and also given that RS equal to SM equal to 6 meter. ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ हमने कंसीडर की है, सिंस OM perpendicular to chord SM, therefore SM just equal to इसको हम पॉइंट P ले लेते हैं। OP रहेगा ये, since OP perpendicular to SM, therefore since perpendicular from the center bisect the chord, therefore SP equal to PM equal to 3 मीटर, ये 3 मीटर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यस ऑफ कोर्स, नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल we will find the OP in right triangle,
that is OPS. OPS. So dear, by Pythagoras theorem, we will get here just like that. You can see that in this triangle is OPS. यहाँ पे देखेंगे तो एक बार फिर से इस डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये पोजीशन है रेशमा, सलमा, मनदीप। सलमा ने बॉल को थ्रो किया तो एस के पास, संदीप के पास आ गई। संदीप ने रेशमा ने ये बॉल को थ्रो किया तो सलमा के पास आ गई। सलमा ने बॉल को थ्रो किया तो मनदीप के पास आ गई। मनदीप ने बॉल को थ्रो किया तो ये रेशमा के पास आ गई। अब आपको ये बताना है कि ये रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस कितना, मीन्स RM आपको फाइंड करना है। हमने क्या किया, O सेंटर है तो OR, OS और OM को ज्वाइन कर लिया और O से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। दिस इज़ द पॉइंट P, तो OP हो गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया एंड यूज हियर पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हमें बेस भी पता है और ये आपको अच्छे से पता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये आपका 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है वो आपका क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो ये आपका 90 डिग्री अगर है तो OS आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे जस्ट लाइक दैट OS स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस SP स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे क्या आ जाने वाला है, OS मीन्स 5 मीटर स्क्वायर और OP आपको पता ही नहीं है तो ये OP हो गया। OP को हम यहाँ पे इसे A ले लेते हैं। ठीक है, ये दिस इज़ द पॉइंट A, P को चेंज करके A दे लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो P पॉइंट हमने चेंज किया है यहाँ पे आ जाएगा SA और इसी तरह से यहाँ पे OA हो जाएगा और इसको चेंज कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा OA स्क्वायर। OA स्क्वायर आपको फाइंड करना है। SP आप देख सकते हो कितना, SA ये भी आपका पॉइंट A हो जाएगा। SA is given that here 3 मीटर। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 25 हो जाएगा, 25 माइनस 9 इक्वल टू OA स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से आपको OA स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। यस ऑफ कोर्स इट इज़, यू विल गेट OA स्क्वायर इक्वल टू 25 minus 9 means 16. So dear, you will get OA equal to how much, 4 मीटर। स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, OA equal to 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम एरिया फाइंड करेंगे। लेट अस स्टार्ट इन ट्रायंगल OSM। आप देखिए यहाँ पे OSM ट्रायंगल कौन सा है, दिस इज द OSM। ये आपका ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में आप देखेंगे तो ये बेस होगा जिसका लेंथ कितना है 6 और ये हाइट हो जाएगा जो अभी आपने पता किया है, दैट दिस इज 4। सो डियर, यू विल यूज द फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल OSM हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू बेस इज SM and OA, this is the perpendicular height. So you will put the value, SM is, this is 6, OA equal to 4 and you can cancel out this 6 by 2, 2 3 ja 6, so 3 4 ja 12 meter square. This is the area of triangle OSM. Now again you can see, I will find once again area of triangle OSM by considering same things as this is the base
and this is the perpendicular. Okay, let us, this is the base and this is the perpendicular. So we will used again to find the area of triangle. तो इसको हम पता करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, आपको अच्छे से पता ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा ना। तो ये परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि सेंटर से जो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, दैट इज जो आप लाइन खींचेंगे वो परपेंडिकुलर होगा और कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करेगा। तो ये अब परपेंडिकुलर होने के साथ साथ बाइसेक्ट भी करेगा। तो हम इसको कोई पॉइंट भी देंगे। तो चलिए इसको पॉइंट दे देते हैं एम। ओके, एम तो यहाँ पे ऑलरेडी है, कुछ और पॉइंट देंगे। चलिए ठीक है, बाद में दे लेंगे। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ आपका ये बेस हो गया और ये हाइट हो जाएगा। हाइट का नाम यहाँ पे आपको पुट करना ही होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा OS और PM। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज OS इंटू PM। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 5 मीटर इंटू PM। तो ये PM आपका पॉइंट हमने उसको P दे दिया है। तो आप यहाँ पे P इंडिकेट कर दीजिएगा, दिस इज द पॉइंट P। ओके, सो ये PM हो जाएगा। और उसके बाद अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए हाफ बेस इंटू हाइट, यू विल गेट हियर जस्ट नाउ दैट हाफ इंटू 5 इंटू PM, दैट इज M से ये M स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 2 को ट्रांसपोज कर दीजिए, इंटू में आ गया। 5 को ट्रांसपोज करेंगे, डिवाइड में पहुंचेगा। PM का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 2 जा 24/5। 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 24 बचेगा आपका, रिमाइंडर होगा। तो पॉइंट लगाएंगे, 40 हो जाएगा। 5 8 जा 40 मीन्स PM इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसके बाद फिर आप यहाँ पे जो SM है, RM है, R से M का डिस्टेंस है वो फाइंड कर लेंगे। हाउ कैन यू फाइंड? क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि RM इक्वल टू 2 इंटू PM, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9.6 मीटर आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन रिस्मा एंड मंदीप इज 9.6 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। Question 6 of the same exercise, that is 10.4. Here is given that the statement of this question: a circular path of radius 20 meter is situated in a colony. 3 boys, Ankur, Syed and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of the string ऑफ ईच फोन। तो यहाँ पे 3 फ्रेंड्स हैं जो सर्कुलर रिंग पे बैठे हुए हैं और वो एक दूसरे के हाथ में जो टेलीफोन, टॉय का टेलीफोन है, उससे खेल रहे हैं। तो वो टेलीफोन स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। तो हमें बताना है कि ये स्ट्रिंग का लेंथ कितना होगा। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ दिस क्वेश्चन वी विल ड्रॉ द डायग्राम। सो लेट अस सी हियर, this is a circular path. Okay, and in this circular path you can see that this is the position of Ankur, this is the position of Syed, this is the position of David, and the radius of circular path, that is OA, is given that 20 meter. So we join this to point S. This is S is also 20 meter, and we will draw and proceed this OA just up to the this chord SD. तो ये SD को M पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। O is the center of the circular path. Okay, so dear, since according to the question the string have the same length between all 3 boys, so the triangle ASD, this is a
equilateral triangle. Okay dear, so let us write here these things as you see just now. We can write, let Ankur, Sayyed and David are sitting at A, S and the point D. Therefore, AS equal to SD equal to DA, and this is given already given. Okay, that is triangle ASD is an equilateral triangle. अगर ये तीनों साइड इक्वल हैं तो ट्रायंगल किस टाइप का हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा. Therefore, point O is a centroid of triangle ASD. उस केस में ये पॉइंट O जो है ना वो इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड हो जाएगा. ध्यान दीजिए, सेंट्रॉइड किसे कहते हैं? व्हाट इज द सेंट्रॉइड? व्हाट डू यू मीन बाय द सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड मीन्स इफ ए सर्कल हैविंग द मिडिल पॉइंट दैट इज सेंटर, देन दैट पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल. ये आपका सेंटर हो जाएगा. इसी तरह से ये आपका अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका भी सेंटर, जो ट्रायंगल का सेंटर है वो भी O ही होगा. तो अगर सेंटर सर्कल का सेंटर और ट्रायंगल का सेंटर अगर सेम ही हो तो उसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रॉइड कहेंगे. तो O इज द सेंट्रॉइड. ओके, अब ये सेंट्रॉइड क्यों हम लेके आए, आइए देखिए, इसका हमें यूज करना है. तो अगर ये सेंट्रॉइड है तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि ये जो सेंट्रॉइड है वो इस OAM जो लाइन सेगमेंट है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा. 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा. 2:1 याद रखिए. तो हम यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे. आप OA डिवाइड बाई OM इक्वल टू 2:1. ये देखिए, OA डिवाइड बाई OM इक्वल टू 2:1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. OA का वैल्यू 20 मीटर है तो 20 मीटर वैल्यू पुट कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 21 जा 20 और 2 इंटू OM हो जाएगा ये. तो इस तरह से आपको मिलेगा 2OM इक्वल टू 20 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा OM का वैल्यू 20/2. 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो 20/2 मीटर, 10 मीटर OM आ जाएगा. अब आप फिर से डायग्राम में देखिए. इस डायग्राम में ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा. M इज द राइट एंगल ट्रायंगल, M इज 90 डिग्री, देयरफॉर ट्रायंगल OSM इज द राइट एंगल ट्रायंगल. ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा. तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं. ऑफ कोर्स OS इज गिवन ऑलरेडी एंड OM अभी अभी हम लोगों ने पता किया ये कितना है? 10 है. दिस इज 10 मीटर. तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके SM फाइंड कर सकते हैं. ऑफ कोर्स वी कैन फाइंड इट. सो वी विल राइट hypotenuse is here. How, what? This is OS. OS is the hypotenuse. So we will write here by the Pythagoras theorem in triangle OSM, that is OS square equal to OM square plus SM square. सभी वैल्यू पुट कर दिया. OS का वैल्यू 20 है, रेडियस है, और OM आपका अभी फाइंड किया. ये देखिए 10 मीटर है, वो वैल्यू पुट कर दिया. SM आपको पता करना है. तो 20 स्क्वायर कितना होता है? 400. 10 स्क्वायर कितना होता है? 100. 10 इसको ट्रांसपोज कर लीजिए तो माइनस में हो जाएगा. 400 माइनस 100 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा. SM का वैल्यू कितना आ गया? 300. तो SM स्क्वायर का वैल्यू 300 है तो SM का वैल्यू हो जाएगा 10√3. क्योंकि हम इसे क्या लिख सकते हैं? 300 को 3 × 100. तो 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 10 और 3 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? √3. तो SM आ गया 3. और आप अच्छे से जानते हो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड. तो ये आपका पता चल गया हाफ पार्ट. ये पता चल गया कि ये पार्ट आपका कितना है? SM जो ग्रीन पार्ट, ये पार्ट आपका कितना दिया हुआ है? ये आपका आ गया 10√3. और ये कॉर्ड आपका देखिए बाइसेक्टेड होगा क्योंकि ये सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है. तो ये अगर 10√3 है तो ये भी पार्ट 10√3 हो जाएगा. तो हम क्या लिख सकते हैं? SD इक्वल टू 2 × SM लिख सकते हैं ना. तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 2 × SM. ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे 10√3. तो 10 × 2 कितना होता है? 20.
20√3। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल टू 20√3, यही हमें पता करना था। तो सभी स्ट्रिंग की लेंथ इक्वल है, तो ईच लेंथ का जो लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग आपकी हो जाएगी, यू विल राइट हियर लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इक्वल टू 20√3 मीटर। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए।